Hi friends, this is Paresh Desai. I'm a chartered accountant. Last 25 years, I'm in the field of finance and business. Last 13, 14 years, I'm into the coaching field. And since last many years, I'm into a very, very interesting market, and that is the stock market, which all of you know as. So friends, a stock market is one place which has given opportunities to everyone almost every day. Lot of people have taken this opportunity and they have become millionaires and billionaires. One of them would be Mr. Rakesh Jhunjhunwala, what we call him as the Warren Buffett of India. Can you imagine he has picked up stocks like Titan Industries at an average price of around 3 rupees and 4 rupees, but that was 20 years back. Yes, but he has held on to those, and today the price of Titan Industries is more than 1,100 per share. So, Mr. Rakesh Jhunjhunwala, who is worth more than $2.3 billion, that comes to almost 7,000 crore rupees. If he has made his wealth through the stock market, why not everybody else? If not 7,000 crores, we can definitely make a few lakhs or a few crores also, right? So, friends, I'm here to introduce you to the best opportunity in investment and trading, and which is through the stock market. So I welcome you today for this session, which I'm be taking on. It is like awareness creation about the stock markets and the opportunities it holds. So let me start by sharing a small presentation with you. So welcome to money making market, okay, which is the stock market. Now this is a small seminar which I'll be taking. It could be around 45, 50 minutes, which I'm taking for understanding what the stock market is and how people can trade and invest and take benefit of it. The name of my company is Sankalp Edu Venture. Okay, and why Sankalp? Because I've taken a vow that whoever wants to have financial freedom, I've taken a pledge, I've taken a vow that he can get it, provided he understands how the stock market works and he learns it and then starts implementing it. So here is one mantra which is given by Warren Buffett. I'm sure you have heard about Warren Buffett. And what does he say? He says that be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. What does that mean? If you see here, this is a typical graph of how the stock markets work. Okay, this is the movement of stocks in a normal pattern. So when the stock prices are going up, okay, this is the time when a lot of people will start getting, they'll start getting news or they'll start getting tips, or sometimes even if you're observing, people would buy, those who don't understand when to buy, they start buying here. The price may go up for a few days, but then it starts falling. Once it starts falling, then there is fear. Oh, I bought at this level, and now it has become this much. For example, Reliance, which was around 1500, 1600 before the pre-COVID fall, it had started falling like 1600, 1500, 14, 13, 12, 11. So when it comes here at around 1100, 1000, person thinks, oh, I bought it at around 14, 1500. Now today it is around 1100. What should I do? And then they sell here. Okay, so out of fear, people would sell. But once they sell, what they observe that the price after some time again starts moving up. This is a common experience of those people who don't understand how the stock market work. That मैं जब भी लेता हूँ, उसके बाद price गिर जाती है, and when I sell, उसके थोड़े दिन के बाद price वापस ऊपर चलेगी. Okay, so that means the moment I buy, after a few days the price starts falling, and moment I sell, after a few sessions the price starts going up. Yes, friends, that happens to someone who doesn't understand how the stock market works. Okay, for example, if you wanted to drive a car, you buy a brand new car and you want to take it on the road and you want to drive it. What are you going to do? You're going to go to a training school, take training on how to drive the car. He'll explain you what is a gear, what is clutch, what is brake, how to drive, how to steer. Okay, and once you know how to do it, then you're going to take your car out on the streets and drive, right? Then why not here in the stock market? Because here also you need to know how to understand these, how to understand the trends, how to understand how the stock market works, what are the different levels at which one should buy and what levels you should sell. There are certain indicators and confirmations. So there are indicators which will tell you
that okay, this is the indication to buy, that this is the indication to sell. Okay, once you get a confirmation for that, and then you take that action. Simple confirmation, simple meaning here would be that when you get an indication, like how a car is going in front of you when you're driving on a highway, and the car in front of you gives a yellow signal on the left flashing, it means that he wants to go on the left hand side, right? So he wants to take a left turn. So you are aware that okay, the car in front of you is going to take left turn, so you're going to slow down. Okay, once he takes a left turn, you can say yes, he did take a left turn. So same thing happens here. There's certain indications, and then there are confirmations. Yes, now the price is going to go up. Here's the indication and confirmation. Yes, now the price is going to go down. So following those is a simple meaning by which when we say that the markets, when we understand, okay, you have to understand how the technicals and the fundamentals work in the market. Let me go back to past in the history. Okay, previously there was a similar outbreak. Okay, you can see in terms of SARS. There was something called as SARS which had come a few years back. Okay, that time also, if you see here, the markets had fallen. Now this is a candlestick pattern, which is typically the study which is used for the study of technical charts. This shows that the trend was down, means for 3 to 4 months the markets fell by how much? Around 16%. And after that, another 6 months, the price has gone up. The markets recovered more than 200% after the fall. We have seen the same thing even here. Many stocks like Reliance and all, they had fallen from a high of around 1500, 1600 in January, February levels. Then they fell to a low of almost 875, and Reliance today, as I speak, is more than 2000 rupees. So not only it recovered to what it had fallen, but it has gone even beyond from the level from where it did fall. Similar thing had happened in bird flu too. I'm sure you must be remembering bird flu. So there was a bird flu outbreak. After that, that was also quite serious. The markets fell by 35%. This was around 2004. Another 1.5 years, market वापस ऊपर गया. कितना? Almost 162% market वापस recover कर गया. So this is history. अगर past में ऐसे हुआ है, तो same thing happens now also. और अभी भी आप देखोगे कि जितना मार्केट गिरा है, 12,500 was a nifty high, and it had gone to a low of 7,500, almost 5,000 points. So that comes to 40% in just 2 months or so. Okay, 2 to 3 months, 40% fall in Nifty. And even today, right now, the markets have recovered almost 90%, 88 to 90% of that fall. Now, when we understand कि stock market कैसे चलते हैं, okay, we'll be easily able to identify these type of stocks. Just look at these names which I've collected. इसमें से काफी, this is not the entire list. ऐसे सैकड़ों ऐसे और stocks है जिन्होंने इससे अच्छा भी किया रहेगा या तो इसके आसपास अच्छा किया रहेगा. Okay, and how to understand those, that I'll be sharing later on. So look at these companies: Astor Polytechnic, Abbott Pharmaceutical Company, Bata, Honeywell, Info Edge, which is nothing but Naukri.com, Jubilant Food, which is Domino's Pizza, which you know, Nestle, NIT, Pfizer, Procter Gamble, TCS, Vinity Organics. So these are some stocks. Just look at a few of them. Astor, which was 300 in January 2017, became 600 in January 18, around 800 in January 19, 1,130 in January 22. So from 300 in January 17 to 1130 in January 20, growth percentage total kitna hai? Around 266% in 3 years. So that comes to almost 90% every year. Wow. Abbott 4,300 ka 6,150, then 8,200, 13,400, 200% in 3 years. 296% Bata in 3 years, 262% Honeywell in 3 years. So if these companies are giving like 300%, 250%, 200% in 3 years, there are many other companies which are giving, if not this much, even if you get like 50% per year, don't you think that is good enough for you? For any person for that matter? अगर 40 to 50% भी annually मिलता है, यहाँ पर almost 80-90% है, लेकिन 40%, 30% भी अगर आता है, it is still better than any other investment venture like fixed deposit or savings account. But you just need to give some time. Of course, थोड़ा time तो देना पड़ता है, कोई भी चीज नहीं सीखनी है तो you have to give some time and understand how the stock markets work. अगर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए बनाए,
So you can definitely make a few thousands and few lakhs also. Now look at the heading. It says laziest smartest people become billionaires. अभी मैंने एक नाम लिया था राकेश झुंझुनवाला, okay, Warren Buffett. I think that they are the laziest smartest people, okay, who have become billionaires. अगर आपको खुद की कंपनी चालू करनी है तो कितने हजारों करोड़ एम्प्लॉय करने पड़ेंगे. You'll have to go get the business, प्रोडक्शन बनाओ, okay, sell the goods, कलेक्शन करो और फिर बाद में वट एवर प्रॉफिट यू गेट यू हैव टू शेयर विथ योर पार्टनर्स. ओके, यहाँ पर एज अ शेयर होल्डर आप क्या करते हो, यू जस्ट इन्वेस्ट इन अदर पीपल्स बिजनेसेस. ओके, और जब भी आप शेयर होल्डर बनते हो योर स्टेटस इज द सेम as the promoter of the company. For example, if you buy Reliance, you own one share of Reliance, your status is the same as Mr. Mukesh Ambani. That is, you are the owner of Reliance. Although you might be having one share, but still your status is same. Because if Mr. Mukesh Ambani gets dividend per share, let us say X rupees, you will also get the same dividend per share, whatever is announced. So you become a partner in an already existing business for a small amount. ओके, आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है. यू डोंट हैव टू गो देयर एंड वर्क. आपको कंपनी में जाके ना काम करना है, ना कंपनी में जाके कुछ गुड्स बनाना है, ना कुछ बेचना है, ना कलेक्शन करना है, कुछ नहीं. यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस. ओके, एंड बाय इन्वेस्टिंग इन द राइट बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कौन से लेवल पर, कौन से लेवल में, यानी आपको कभी प्राइस, कौन सी प्राइस आएगी तो आपको बाय करना है और सेल करना है, वो अगर आप समझते हो, ओके, यू कैन बिकम अनदर राकेश झुंझुनवाला. तो बिजनेसमैन जो लोग हैं जो खुद काम करते हैं, फैक्ट्रीज डालते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स बेचते हैं, वो सब आपको बिल्कुल नहीं करना है. बिकॉज दैट इज डन बाय द प्रोमोटर्स, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो एज ए शेयर होल्डर आपको एक्चुअली दो बेनिफिट्स मिलते हैं. पहले तो आपको एक डिविडेंड मिलेगा. ओके, सो डिविडेंड जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, जो कंपनी शेयर करती है लोगों के साथ, उसको डिविडेंड बोलते हैं. और दूसरा इवन बेटर, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिलायंस का प्राइस 600 1600 से ऑलमोस्ट 900 के नीचे गई और आज वापस 2000 के ऊपर है. तो 900 से 2000, चलो मान लो 900 से 2000 कम्स टू 1100. एकदम लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई नहीं पकड़ते. मान लो 1200 में लिया और 2000 में एग्जिट किया, तो भी अराउंड 1200 रुपीज के ऊपर अगर 800 रुपए भी, अगर 800 900 रुपए रिटर्न मिलते हैं, सो दैट द टाइप ऑफ रिटर्न्स व्हिच यू गेट is possible, I think, only in the stock market. और इसको मैं कहता हूँ कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन यानी जो स्टॉक की वैल्यू है स्टॉक मार्केट में, आपकी कंपनी की जो स्टॉक मार्केट में वैल्यू है, वो जो बढ़ती है, दैट वैल्यू इज मच मच मोर देन द डिविडेंड इटसेल्फ. अच्छा, एज अ स्टॉक मार्केट आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रेड, ओके, एंड मेक मनी. जैसे कोई एक शॉपकीपर है और मान लो वो गारमेंट्स बेच रहा है, तो क्या करेगा कि वो गारमेंट्स खरीदेगा होलसेल में और बेचेगा रिटेल में. तो डिफरेंस उसका बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में उसका प्रॉफिट है. तो सेम थिंग हियर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस फुल टाइम. शेयर्स बाय करते हैं, लोअर लेवल पे है, ऊपर गए तो बेच देते हैं, डिफरेंस उनका प्रॉफिट है. ओके, तो जो शॉपकीपर पूरा समय देता है 10 घंटे 12 घंटे अपने शॉप में, उतना ही टाइम आपको इस मार्केट में देना है. ओके, बट आपको समझना है, जैसे शॉपकीपर तो समझ गया ना उसका बिजनेस, कौन सा क्लॉथ लेना चाहिए, कौन से कपड़े बिकते हैं, कौन सी सीजन में क्या रखना चाहिए, राइट, वो भी तो एक स्टडी है. तो यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक चलता है, कौन सा स्टॉक कभी आया, कौन से लेवल पे है, कभी बाय करना चाहिए, ये जो स्टडी है इसको स्टॉक मार्केट का स्टडी कहते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस क्वाड्रेंट. ओके, दिस क्वाड्रेंट इज गिवन बाय none other than Robert Kiyosaki. Okay, he has written a book called as Rich Dad Poor Dad. I am sure you must have read it. अगर नहीं पढ़ा है ना तो प्लीज पढ़ो, बहुत बहुत अच्छी बुक है ये. यहाँ पर ने 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे लिए. फर्स्ट इज एम्प्लॉय क्वाड्रेंट. एम्प्लॉय क्वाड्रेंट खुद काम करेगा, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है, राइट. वॉट एवर मनी ही गेट ओनली बाय वर्किंग, जितने घंटे काम करेगा उतने टाइम को उसको सैलरी मिलेगी. सेल्फ एम्प्लॉयड है, लाइक डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं है, बट स्टिल दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. जिस दिन डॉक्टर या सीए काम करने का बंद करेगा उसकी सैलरी बंद हो जाती है. बिजनेस ओनर है जिसके नीचे 5 10 15 100 200 1000 लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो भी क्या हो गया, वो भी बिजनेस ओनर हो गया. ओके, सो दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4. क्वाड्रेंट 4 जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके,
वो इन्वेस्टर क्वाड्रेंट है। यही मैं, ये जो स्टेज है ना, दिस इज द लास्ट स्टेज विच इज माई प्लेज टू गिव फाइनेंशियल फ्रीडम टू पीपल। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हो, आपका क्या हो रहा है कि वेल्थ ग्रो हो रहा है विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। अगर रिलायंस का शेयर 900 रुपए से आज लो से अगर 2100 रुपए तक गया हुआ है, उसमें आपने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, आपने तो सिर्फ इन्वेस्ट किया और वो प्राइस बढ़ गई। सो दैट इज व्हाट आई कॉल एज अ पैसिव इनकम, विदाउट यू डूइंग एनीथिंग, विदाउट यू वर्किंग। Okay, the increase in the price which you get is the passive income. Your money works for you rather than you working for the money. So the investor category है ना, that is the category which Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala, they all belong to this category. They don't do any work, ना कोई कंपनी में जाके काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो कंपनीज अच्छी अच्छी कंपनीज है उस कंपनीज में उन्होंने जाकर क्या किया, दे जस्ट बिकेम द शेयर होल्डर्स। और जैसे उस कंपनी का डिमांड बढ़ते गया, शेयर की प्राइस बढ़ती गई, उनकी वेल्थ बढ़ती गई। सो अल्टीमेटली हाउ टू लैंड इन दिस क्वाड्रेंट is what you should be aiming of. Okay, if you are in any of these three categories, in these quadrants, you could be in this quadrant right now. Slowly you can come to this quadrant of investor. मान लो आप जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस ओनर हो, धीरे धीरे आपके जो सेविंग्स है वो इस क्वाड्रेंट में आप अगर डालते जाते हो, ओके, तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो इतनी अच्छी हो सकती है कि अगले कुछ 10 साल 15 साल में आपको फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। ओके, मेरे अभी पीछे एक 18-19 इयर्स के स्टूडेंट्स की बैच होगी रिसेंटली। उसमें एक स्टूडेंट के फादर ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुमको हर महीने $800 दूंगा। मैंने कहा बेटा तुम अगर $800 एवरी मंथ, अगर एट दिस एज इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिलीव मी इन 15 years यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली फ्री। आपको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, एट व्हाट लेवल, दैट हैज टू कम फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि टेक्निकल्स हम देखेंगे कि कैसे टेक्निकल्स के फायदे हैं एंड हाउ यू कैन एंटर इट एट अ वेरी गुड टाइम। नाउ हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट। ओके, ये एरर्स है ना, ये जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है हमको। चीप स्टॉक्स के पीछे नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो सस्ते में मिलेंगे, उसको कहते हैं ना कि रस्ते का माल सस्ते में। भले कंपनी अच्छी रहेगी लेकिन उसका अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो ऐसे स्टॉक्स में आपको नहीं जाना है। अगर ओएनजीसी जैसे अगर हम कंपनी देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा। ये जो आपको चार्ट दिख रहे हैं अभी, ओके, सो दिस चार्ट इज ऑफ ओएनजीसी। ओके, यहाँ पर इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। और ये चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक आपको चार्ट दिखेगा विच इज लाइक दिस। ओके, तो राइट हैंड साइड पे इसका प्राइस है, और अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट देखो तो लुक व्हाट इज हैपनिंग। प्राइस वाज एट अ हाई ऑफ अराउंड 320 रुपीज, 310 320 भी गई थी, फिर बाद में नीचे आ गई, फिर 220 तक गई, फिर वापस नीचे, फिर वापस 220, फिर नीचे 137 180, एंड लो में 52 रुपीज तक भी गई थी। यानी जो स्टॉक 300 रुपए का था वो कुछ ही साल में, इनफैक्ट ओनली 5 years, 2014-15 की बात है कि तभी ये स्टॉक 300 रुपए का था, और ये 2020 मार्च में दिस हैज गॉन टू लो ऑफ। Hello, sir. यस रुशाली, We can't able to see the chart. ओके सॉरी, I'll share it. Okay, can you see the chart now? Yeah. So ये ONGC का चार्ट आपको दिख रहा है ना, तो ONGC का चार्ट जो है, दिस इज अ टेक्निकल चार्ट जिसको हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। सो इन दिस कैंडलस्टिक चार्ट, डू यू सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हाउ इज द स्लोप, इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। ओके, तो ऐसे अगर स्टॉक्स है जो नीचे में आ रही है, यहाँ पे अगर कोई सोचेगा क्या कि 300 रुपए का स्टॉक है वो मुझे ना 200 में मिल रहा है, चलो मैं लेता हूँ। ओके, तो पहले 300 था, अभी 200 है, और कंपनी कौन सी है, ओएनजीसी जैसी है। तो बिना सोचे कंपनी का खाली नाम देख के अगर 200 रुपए में कोई स्टॉक लेता है, तो 200 रुपए का क्या हो गया, फिर हो गया 150 रुपया। चलो 150 में अगर कोई लेता है सोच के, चलो पहले का 200 के कंपैरिजन में 150 अच्छा है, तो 150 का बाद में क्या हो गया, 50 हो गया। तो ऐसे अगर आपको ग्राफ दिखता है कोई भी, ओके, मैं अभी एक लाइन चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। लुक एट द चार्ट, हाउ इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको स्लोप कैसा दिख रहा है, ओवरऑल द स्लोप इज डाउन। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना वो चीप स्टॉक्स होते हैं। कंपनी वाइज दे माइट बी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, यू कैन गो इन अदर स्टॉक्स व्हिच कुड बी समथिंग लाइक, मैं अभी आपको रिलायंस का चार्ट दिखाता हूं।
So if you see Reliance chart of Reliance Industries, how is the chart of Reliance Industries? देखो वो जो आपको 2014 से ONGC का दिख रहा था एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये। 2014-15 में रिलायंस की प्राइस कहाँ पर थी? 400-500 रुपए थी, और अभी कितनी है? 2100, 2200 का हाई क्रॉस करके अभी 2100 है, 100 रुपए नीचे। बट लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस, लेफ्ट टू राइट कैसे जा रहा है ये, दिस इज गोइंग अप। तो ऐसे जो चार्ट है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ टेक्निकल चार्ट। तो ये टेक्निकल चार्ट्स में कैसे समझना है कि व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज अ गुड स्टॉक, सेकेंडली एट व्हाट लेवल टू एंटर और एग्जिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कमिंग बैक, स्टॉक से पीछे नहीं जाना है। डू नॉट एंटर द ट्रेन गोइंग टू द यार्ड। काफी बार ऐसे आप चार्ट देखोगे कि ट्रेन यार्ड में जाती है ना, कभी प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है कृपया इस गाड़ी में ना बैठे, ये ट्रेन यार्ड में जा सकती है, जाएगी करके। तो उस ट्रेन में अगर आप बैठोगे तो कहाँ पे जाओगे? यार्ड में जाओगे। तो इस यार्ड में जाने वाली ट्रेन में आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू सी इज, अगर आपको ग्राफ दिखता है कि दैट द प्राइसेस, द ग्राफ इज नॉट गुड, तो उसमें यू शुड नॉट एंटर दोस टाइप ऑफ स्टॉक्स। डोंट बी टू लॉयल टू द स्टॉक्स, डोंट गेट टू इमोशनल। काफी बार क्या होता है कि लोग इमोशनल हो जाते हैं, नहीं ओएनजीसी जैसा स्टॉक है, मैं कैसे निकालूं इसको, लेकिन क्या हुआ, 300 रुपए से हो गया 50 रुपए तक। सो यू कैन नॉट बी लॉयल टू योर स्टॉक, टू द पर्टिकुलर कंपनी। ओएनजीसी भले कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तभी तो प्राइस नीचे आ गई, नहीं तो ऐसे नीचे आने का सवाल ही नहीं होता है। डोंट ट्राई टू एवरेज। लोग क्या करते, 300 का 200 हो गया ना, एवरेज करते हैं। तो चलो मेरा प्राइस क्या हो गया, 300 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, 250 मेरा एवरेज हो गया। और नीचे आ गया 150 में और ले लिया, ओके, और नीचे आ गया 100 में और ले लिया, और 50 हो गया 50 में और ले लिया। सोचो एवरेज करते करते अगर जाएंगे ऐसे, तो क्या हो रहा है, हर टाइम आप यू आर पुटिंग मोर मनी इनटू अ लॉस मेकिंग शेयर ओनली। तो एवरेजिंग जो है ना, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज डोंट बाय बेस्ड ऑन टिप्स। काफी बार आपको टिप मिलेगी, नहीं ये स्टॉक अच्छा है, देखना 6 महीने में कहाँ जाता है, समटाइम्स बेस्ड ऑन न्यूज कि दिस इज सो एंड सो थिंग इज हैपनिंग। बट न्यूज जब तक हमारे पास आती है, बिलीव मी, probably you are the last person to know that news। जब तक हमारे पास न्यूज आती है थ्रू टीवी है या न्यूज़पेपर है, तभी पूरी दुनिया को पता चल गया कि ऐसी ऐसी अच्छी कंपनी है। बट जब भी वो न्यूज ओरिजिनेट हुई थी, ओके, बिफोर इट बिकेम अ न्यूज, जब भी एक्चुअली जब भी हो रहा था, तभी लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ तो अच्छा हो रहा है। और वो हमको कहाँ पर दिखता है, वो हमको दिखेगा चार्ट्स पर। जैसे रिलायंस में जब भी आप देखते हो, रिलायंस काफी टाइम तक यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2015-16 की बात है, तो 400-500 रुपए तक काफी टाइम से यहाँ पर थी। फिर 500 रुपए से जब ऊपर जाने का शुरू हुआ, पहले कुछ न्यूज में कुछ नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि रिलायंस ने जियो लॉन्च किया है, रिलायंस की अभी कम्युनिकेशन में उसमें बहुत अच्छी मूव में आने का अभी चांसेस है, तो वो तो बाद में पता चलता है। लेकिन बिफोर दैट न्यूज कम्स आउट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई एम ड्रॉइंग वन लाइन हियर। ये जो लाइन है ना, ये लाइन देखो, रिलायंस ने लाइन क्रॉस कर दी है, ओके, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जब क्रॉस कर जाती है कोई भी कंपनी, तो वो एक बहुत अच्छा रीजन माना जाता है कि अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तोड़ के अभी ये प्राइस ऊपर गई है, ओके। तो ये रेजिस्टेंसेस है, ये ट्रेंड लाइंस है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे समझना है, क्योंकि 562 का ये जो लाइन था, उसके बाद आज देखो प्राइस कहां पर है। टुडे द प्राइस इज एट अ हाई ऑफ अराउंड 2100। तो कहा 2017 में 562, कहां पे 2020 में 2100। सो इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 3 years, from around 550 560 to 2100, so almost like 4 times in 3 years। अगर ऐसे हमको स्टॉक्स अगर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ इस लेवल पर जब भी ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, जब भी ब्रेकआउट होगा उस लेवल पर अगर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जो टाइप ऑफ रिटर्न्स हमको मिलता है वो अमेजिंग रिटर्न्स होते हैं। अभी रिलायंस गए, वैसे दूसरे काफी सारे ऐसी कंपनीज है, रिलायंस जैसी कंपनीज है, वो आज इस लेवल पर हो सकती है, जो अगले 3 या 4 साल में ऐसे रिलायंस के जैसे रिटर्न्स दे सकती है। अगर रिलायंस में अभी इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेनिफिट तो है, लेकिन ये जो 3 साल में बेनिफिट मिला, ऐसा सेम बेनिफिट अगले 3 साल में मिलेगा क्या? शायद नहीं। लेकिन ऐसे दूसरी काफी सारी कंपनीज है जो अभी इस लेवल पर है, और रिलायंस के जैसे अगले 3 साल में वो रिलायंस के जैसे इतना ऊपर चढ़ सकती है।
तो उसको कैसे समझना है, ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड दोस बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे मैं कहता हूँ कि इसका अगर कुछ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन लाइज इन द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस है क्या बेसिकली? ओके, इट इज वेरी सिंपल। जैसे आपको पता है ना कि प्याज का प्राइस बढ़ गया था, 30-40 रुपए किलो जो प्याज प्याज होता था, वो जो 100, 150, 200 रुपए तक पहुंच गया। तो ऐसे कैसे हो गया? 40 रुपए की चीज 200 रुपए तक पहुंच गई। तो देयर वाज सिंपल डिमांड एंड सप्लाई रूल। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर डिमांड कोई भी चीज की बढ़ जाती है तो क्या होगा कि प्राइस बढ़ती है, सप्लाई रिमेनिंग द सेम। ओके, यहाँ पर क्या हो गया था ऑनियंस के टाइम पर? डिमांड वाज द सेम बट सप्लाई हैड रिड्यूस। तो इफेक्ट तो एक ही हुआ ना कि सप्लाई कम हुआ, डिमांड रिमेनिंग सेम, द प्राइस स्टार्टेड गोइंग अप। तो कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उनका अच्छा प्रॉफिट्स जो रिजल्ट्स है वो अच्छे हैं, तो क्या होता है उस कंपनी के लिए डिमांड क्रिएट हो जाती है। डिमांड क्रिएट हो गई तो क्या होता है कि द प्राइस स्टार्ट्स मूविंग अप। और जैसे प्राइस ऊपर जाती है, वो न्यूज आने के पहले हमको उस चार्ट पर दिखते, जैसे मैंने वो लाइन ड्रॉ की थी ना, उस लाइन के पास हमको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है वो तभी पता नहीं है, लेकिन कुछ तो अच्छा हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है। मैं क्या करता हूं, मैं उस कंपनी का स्टॉक बाय कर लेता हूं। तो यही है टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आगे आगे चल के क्या कर सकते हैं, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने जो देखा है उसमें काफी टूल्स और इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको पता है कि कोई भी अगर कोई गाड़ी चलाता है, हाईवे पे आप जाते हो तो सामने की अपनी जो गाड़ी चल रही है आगे, उस आगे की गाड़ी ने मान लो रेड येलो कलर का सिग्नल दिया लेफ्ट टर्न का, तो वो क्या हो जाता है कि इंडिकेशन है कि बॉस प्लीज आप स्लो डाउन हो जाओ, मैं लेफ्ट में जाने वाला हूं। तो आप क्या करोगे, आप अगर उस गाड़ी के पीछे हो तो आप ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर स्पीड। व्हाई? क्योंकि वो अगर वो लेफ्ट जाने वाला है तो वो अपनी स्पीड कम करेगा, तो आपको भी आपकी स्पीड कम करनी है, राइट? तो वो इंडिकेशन हो गया। राइट नाउ इंडिकेशन देने के बाद कंफर्मेशन कभी आएगा कि जब भी वो एक्चुअली लेफ्ट जाता है, करेक्ट? और वो क्या है कि 100 के स्पीड पे जा रहे हैं तो 100 के स्पीड पे तो लेफ्ट नहीं लेगा ना, ही इज गोइंग टू स्लो डाउन। सो ये स्लो डाउन हो सकता है पहला नहीं तो दूसरे या तीसरे लेफ्ट में वो लेफ्ट लेगा। लेकिन जब भी वो लेफ्ट लेगा तो क्या तभी हम बोल सकते हैं क्या कि हाँ यस कि वो गया है अभी लेफ्ट में, तो वो क्या हो गया, वो कंफर्मेशन हो गया। ओके, सो एक इंडिकेशन आ गया कि आगे की गाड़ी लेफ्ट जाने वाली है, और दूसरा क्या आ गया, कंफर्मेशन आ गया कि यस वो लेफ्ट चली गई। तो सिमिलरली इंडिकेशंस और कंफर्मेशन हमको ना चार्ट्स पे दिखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि प्राइस एक लेवल क्रॉस कर की गई, वैसे बहुत सारे इंडिकेशंस है कि हाँ यहाँ पर एक इंडिकेशन है, और फिर बाद में कंफर्मेशन आता है कि हाँ एक्चुअली प्राइस ऊपर जा रही है। So this is a study which is called as the technicals। एक खाली मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, वैसे काफी सारे इसमें जो इंडिकेशंस है वो हमको बताते हैं कि कौन सा लेवल होता है, अच्छा लेवल होता है जो प्राइस फॉर बाइंग दैट स्टॉक। नाउ बैकडोर स्टडी ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं उसको, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि रिलायंस की प्राइस ऊपर जा रही है तो कुछ तो फंडामेंटल रीजंस होगा, नहीं तो ऐसी थोड़ी प्राइस ऊपर जाएगी। सो व्हाट वाज द फंडामेंटल रीजन, वो तो बाद में पता चलता है। तो देयर वाज सम न्यू प्रोडक्ट व्हिच वाज देयर, उनका रिजल्ट्स अच्छा आ गया था, दे वर गोइंग टू इनटू न्यू मार्केट्स। तो जो फंडामेंटल रीजन है डेफिनेटली इट्स अ फंडामेंटल रीजन, बट टेक्निकल को हम बैकडोर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम द फंडामेंटल न्यूज आती है, टेक्निकल वाले उसका एडवांटेज लेके वो लोग ऑलरेडी बाय किया होता है उन्होंने स्टॉक। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है बेसिकली बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टडी है उसको कहते हैं, राइट? और काफी सारे सीएस है जो रिसर्च टीम्स है वो कंपनीज को स्टडी करते हैं, और जब भी कोई अच्छी कंपनी मिलती है वो खुद के लिए पहले बाय करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए बाय करते हैं, फिर बाद में न्यूज देते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। तो बट बाय द टाइम क्या होता है, प्राइस ऑलरेडी ऊपर चली गई रहती है, और आपका हो सकता है कि तभी जो लोग ने पहले बाय किया है वो लोग तभी सेल करने आते हैं और आप खड़े हो गए लाइन में बाय करने के लिए, तो होगा क्या सोचिए, प्राइस वहां से तो नीचे आ जाती है। नेस्ले का जो एक स्टॉक था, जैसे यहाँ पर 2016 में इफ यू सी दैट देयर वाज अ इशू ऑफ मैगी नूडल का, कुछ टेक्निक इनका इशू हुआ था हेल्थ का। ओके, तो दैट टाइम द प्राइस हैड कम टू अराउंड 5500, और अभी आज का भी प्राइस है, टुडे द प्राइस इज अराउंड 17000। तो 2016 में 5000 से लेके आज अराउंड 16500 17000 के लेवल पे अगर प्राइस आ गई है, तो सोचो 4 साल में कितना ग्रोथ हो गया है। तो ऐसे जो स्टॉक्स है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो दैट इज पॉसिबल फ्रॉम द स्टडी।
ये जो ग्राफ है ना, ये मैं बता रहा था जैसे द ट्रेन गोइंग टू द यार्ड, देखो कहां तक पहुंच गई। ये यदि 1200-1300 का है ना, तो हाई में तो 2000 था इसका, ओके। और 2000 का प्राइस आ गया कहां पर, 10 रुपए के भी नीचे। ये 12.93 दिख रहा है, लेकिन लोएस्ट इसका था 9.50, ओके। तो सोचो कि कहाँ 2000 और कहाँ 9 रुपए 50 पैसे। तो ऐसे अगर यार्ड में जाने वाली जो स्टॉक्स है उसको हमको अवॉइड करना है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे चलता है आपको काफी अभी समझ में आ गया रहेगा कि फंडामेंटली कुछ जब भी अच्छा होता है तभी प्राइस डिमांड के तौर पे, अगर प्राइस की डिमांड क्रिएट हो जाते हैं एंड दैट डिमांड स्टार्ट्स शोइंग ऑन द प्राइस एंड द प्राइस स्टार्ट्स मूविंग अप, ओके। जो प्राइस मूवमेंट्स है, पैटर्न्स है, जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी उसको ट्रेंड्स वगैरह बोलते हैं। तो बहुत सारे उसमें टर्म्स है, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरे पास जो स्टूडेंट्स है 18-19 साल के भी, अभी लास्ट बैच हुआ था, वो लोग, उनको भी अगर समझ में आ सकता है तो डेफिनेटली एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, ओके। एल्डेस्ट दिसिंग पर्सन आई हैव गॉट इज अराउंड 80 इयर्स, 80 साल का भी अगर कोई आदमी सीख सकता है और 18-19 साल के बच्चे भी अगर सीख सकते हैं, तो आई थिंक एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। टेक्निकल का खुद का प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट है, जिससे हमको एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे प्राइस कहाँ पे जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको फंडामेंटल्स की कोई नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि कंपनी कैसी चल रही है, क्या है, वो अगर नहीं भी पता है तो भी आपको दिख रहा है कि हाँ प्राइस ऊपर जा रही है, देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस, देयर आर सर्टेन कंफर्मेशंस, एंड यू बाय, okay। So even if you don't know any fundamentals, technical analysis itself is sufficient for you to make a decision in the stock market. Now technical analysis जो हमने चार्ट दिखाया था, that chart, okay, you'll be surprised to know that it is not only applicable to stocks in India but international markets। मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, उन्होंने यहाँ पर सीखा है और वो लोग गए यूएस में और वहां पर भी वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो स्टडी है, वो स्टडी भी इसी टेक्निकल चार्ट्स पे चलती है। सेम जो चार्ट देखा आपने, कमोडिटीज होती है, कमोडिटी मार्केट इज ओपन टिल नाइट 11:30, मॉर्निंग 9 till 11:30। तो कमोडिटीज मार्केट है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, फिर दूसरे कमोडिटीज है। तो उस कमोडिटी मार्केट्स के लिए भी सिमिलर थिंग वर्क्स। करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यही चार्ट चलता है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया तो आप स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज एंड आल्सो फॉरेन मार्केट्स, ये चारों, ऑल दीज 4 सेक्टर्स यू कैन स्टार्ट पार्टिसिपेट। तो भी देखते हैं हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, मान लो आपके पास समय नहीं है, यू डोंट हैव टाइम ऑन अ डे टू डे बेसिस, यू कुड बी अ लाइक अ वर्किंग प्रोफेशनल, you could be in a very good job like Archana madam hai, which is a principal। so if she doesn't get time on a day to day basis, आपको, आप सोचते नहीं सिर्फ हफ्ते में मैं एक 15-20 मिनट देख सकती हूँ, चलेगा। तो you can be a long term investor, okay। so you could be a long term investor for, you say okay मुझे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो। दूसरा, अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हो, जैसे रिलायंस में मैंने कहा था कि 1600 से प्राइस 900 तक आ गई थी, वापस 1600 तक चली गई। तो 1000, मान लो 1000 में किसी ने लिया, 1050 में लिए और 1600 में वापस बेच दिया, ओके। ये 11 मई का मैंने डेट लिया था। तो वहां पर प्रॉफिट था 550 रुपीज ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1050। तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना था विद इन जस्ट 1.5 months was around 52%। तो इसको हम पोजिशनल ट्रेडर बोलते हैं। इसको अगर ये पोजिशनल ट्रेडर कोई है तो वो अगर दिन में मान लो दिन में 15 मिनट भी अगर देखता है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, ओके। सो दैट इज हाउ पोजिशनल ट्रेडर कैन गिव टू टाइम द मार्केट। और तीसरा होता है डे ट्रेडर, ओके। सो डे ट्रेडर इज समबडी हु कैन ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस, ओके। तो डेली बेसिस का मतलब क्या होता है कि एज अ डे ट्रेडर you can buy and sell intraday। intraday मैंने अभी बाय किया सुबह में, by afternoon you can sell it। market opens at 9:15 and closes at 3:30 in the afternoon। मान लो 9:15 9:30 को बाय किया, 12 साढ़े 12 बजे या 3 सवा 3 बजे आपने बेच दिया। तो डिफरेंस जो भी है, अगर आपका सेलिंग प्राइस इज मोर देन द बाइंग प्राइस, इट इज प्रॉफिट, अदरवाइज देन देयर इज लॉस। सो द डे ट्रेडर somebody who could buy and sell intraday। तो ये 3 लेवल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम। जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम है वो डे ट्रेडर बन सकता है,
और ये दोनों भी पार्टिसिपेट कर सकता है. सर्टेन पोर्शन ही कैन गिव फॉर लॉन्ग टर्म, सर्टेन पोर्शन गिव फॉर पोजिशनल, सर्टेन पोर्शन ही कैन गिव फॉर डे ट्रेडर. अगर कोई कहता नहीं मुझे डे ट्रेडर के इतने समय नहीं है, तो यू कैन बी आइदर पोजिशनल और यू कुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. और अगर बिल्कुल भी समय नहीं है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो हो ही सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ हफ्ते में ओनली वंस इन अ वीक फॉर 15 minutes also we can spare, which I think is possible for anybody, even who might be very super busy also. So 15 minutes also we can spare every week. That is also good enough for you to become a long term investor. So what you need to learn to trade in the stock market. Stock market में आपको दो बहुत important चीज जाननी है, कि वो है कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक, कौन से स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, विच स्टॉक आई शुड बी बाइंग. और दूसरा इंपॉर्टेंट वन इज एट व्हाट प्राइस आई हैव टू बाय, और व्हाट प्राइस आई हैव टू एंटर, और व्हाट प्राइस आई हैव टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, कि कौन सा स्टॉक और व्हाट प्राइस. ये दो चीज छोड़ के और तीसरा कोई इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अगर आपको पता चल गया, यू विल बी बाइंग द राइट टाइप ऑफ स्टॉक एंड एट द राइट टाइम. सो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का आपको थोड़ा जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें मिल जाता है. मार्केट टर्मिनोलॉजीज, थियरीज, देन मार्केट्स कैसे चलती है, जो स्टडी ऑफ चार्ट्स है, ओके. और मेनली मनी मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन रूल्स. कैपिटल आपका जो हार्ड अर्न मनी है, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू लूज देयर हार्ड अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट. तो हम ऐसे ही ट्रेड्स लेते हैं जहां पर आपको एकदम सेफली आप ट्रेड कर सकते हो, ओके. जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक रेड पोर्शन दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन पोर्शन दिख रहा है. तो ये रेड पोर्शन आपका रिस्क का हो जाता है, ओके. और जो ग्रीन पोर्शन है वो आपका रिवॉर्ड का हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर थी, यहाँ पे नीचे आ गई थी, जब ये ऊपर जाएगी तभी एटलीस्ट यहीं पर तो जाएगी. तो ये पोर्शन आपका रिवॉर्ड हो जाता है और ये पोर्शन रिस्क का हो जाता है, राइट. तो यहाँ पर रिवॉर्ड रिस्क रेशियो देखो कितना, 4.3. मिनिमम आई थिंक आई एडवाइज इज 3:1. यानी जो आपका जो रिवॉर्ड है ना, ये जो ग्रीन पोर्शन होता है रिवॉर्ड हैज टू बी एटलीस्ट 3 times योर रिस्क. तो ऐसे में देखो सिंपल कैलकुलेशन है. मान लो आपने 10 ट्रेड्स लिए, उसमें से नॉर्मली टेक्निकल के हिसाब से 7 या 8 सही जाते हैं, लेकिन मान लो चलो 7-8 नहीं, 50-50 पकड़ते हैं कि 10 में से 5 सही गए, 5 गलत गए. जहां पर सही जाता है वहां पर 5 into 3, 15x you are making the profit. When there is the trades goes in your favor, you're going 5 into 3, 15. If the trade goes against you, you may make a loss. Market है, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन लॉस कितना है? लॉस इज ओनली 1x. तो 5 गलत गए तो you'll be making only 5x loss. 5 जो सही जाते हैं, you'll be making 5 into 3, 15x profit. So 15x minus 5x, you still are in profit for 10x. तो भले आपके अगर 5 गलत भी जाते हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही रहते हो. तो ऐसे जो ट्रेड्स है, सिर्फ ऐसे ही ट्रेड्स मैं आपको एडवाइस करता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये ट्रेड्स कौन से है और उसी ट्रेड्स को हमको बाय करना है. हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, लेवल 1 का मैं इसको बोलता हूँ 3M, जिसको मैं कहते हैं मनी मेकिंग मार्केट. तो ये एकदम बेसिक लेवल से शुरू होता है, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग के स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या है, व्हाट इज द शेयर, व्हाट इज द इंडेक्स, what is NSE, BSE, प्राइस ऊपर क्यों जाती है, and all that. So यहाँ से लेवल 1 पे आपको ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज थी, वो 2 इंपॉर्टेंट चीज तो डेफिनेटली आपको सीखने मिलेगी. दूसरा लेवल है MQ, जो मार्केट मल्टीप्लायर में बोलता हूँ, कि अगर जैसे कोई होता है लेवल 1 का, लेवल 2 में और ज्यादा आपको बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोर देन 90% आपके जो ट्रेड्स है वो सही जाने के चांसेस है. एक तीसरा मॉडल है, उसका हम कहते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं फंडामेंटल भी सिखाता हूँ विच इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी, और टेक्निकल और फंडामेंटल जिसको दोनों पता है उसके लिए तो वो लिथल कॉम्बिनेशन होता है, वो गलत जा ही नहीं सकता और सबसे ज्यादा एडवांटेज में वो ले सकता है. मान लो किसी ने आइडेंटिफाई किया, हाँ ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी और टेक्निकली प्राइस वाइज उसको एक सस्ते में मिल रहा है, so won't that be a lethal combination? Yes, because company is fundamentally good, excellent company, and the price, because the market has corrected or for whatever reasons, price नीचे आ गई है, and he gets it to buy at a very low price. So that's why I call it as a lethal combination model. और the fourth one है जिसको those who are interested in futures and options, उसको मैं leverage your money कहते हैं. Okay, so in this what happens is that you can leverage your money in
100 rupees you can take in leverage, you can take advantage of sometimes like 500 rupees, यानी 4 times 5 times आपके capital का आप leverage ले सकते हो. तो what is futures and options, वो fourth level पे होता है leverage of money में. तो ये 4 programs है. Level 1 which is 3M, level 2 which is MQ which is called as multi market multiplier, level 3 is the lethal combination module, level 4 is leverage of money. आपको अगर चाहिए तो आप चारों भी एक साथ कर सकते हो, अगर आपको एक करना है, एक एक करके करना है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आई वुड से एटलीस्ट डू वन, एटलीस्ट एक आप करो. उसके बाद में भी अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल गो फॉर ऑल द फोर. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु जॉइन मी दे आर जॉइनिंग फॉर ऑल द फोर. मेरा जो वेबसाइट है www.sankalpeduventure.com, उस पर जाकर भी देख सकते हो. वहां पे बहुत सारी मैंने 5 स्टूडेंट्स के ये डाले हुए हैं. I've put my the testimonials, बाकी पूरे सब डिटेल्स है आपको साइट पे मिल जाएंगे. Okay, so thank you very much for attending this session.